Hello students, a very phonetic, fabulous and fantastic good morning to all of you. So before of that what we have learned? We have learned divisibility test and we have also seen its rule, means how to divide the given number like this. Okay, 4 rules we have learned regarding to this divisibility test. Now in the today's session we are going to see the prime factorization. So we have to know the next topic of this number, that is playing of our numbers. That is next topic is prime factorization. But before of that, it is very important that you have to know what is meant by prime factorization. Okay, you all of know that what is meant by prime numbers. You already know that what is meant by prime numbers. I already told you. Now the point arises here, what is meant by factorization? Prime you got that, but what is meant by factorization? Now that is the main point. So factorization means what? When a given number is expressed as a product of its factors. Okay, when we can say that the number is factorized, हम कब कहते हैं कि गिवन नंबर हमारा फैक्टराइज्ड हो गया या फिर उसका छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेशन हो गया, ऐसा हम कब कहते हैं? जब गिवन नंबर्स को हमने अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स हमने एक्सप्रेस किया तो तब हम बोलेंगे कि दिस नंबर इज फैक्टराइज्ड. जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ फैक्टराइजेशन की, ठीक है? फैक्टराइजेशन आप इसको क्लियरली देख के लिखना. फैक्टराइजेशन मतलब क्या? When a number is expressed as product of its factors, then we say that the number is factorized. The number is factorized. Okay, means if we have any number, like suppose we will take two examples. Example number 1, okay, that is suppose if we take the number 12. Okay, now we have to know what is the factorization of 12. Okay, and then we will learn from that, we will learn what is meant by prime factorization. Okay, so first of all 12 is there, we can factorize this 12. In which way we can factorize this 12? We already know the factor of 12. Here one by one I will write down. 4 3s are 12. Okay, that is the one factor. Again 6 2s are 12. Okay, and next one is 12 1s are 12, but we will not take this one because again we have to find out the factors of 12 anyhow like this. That's why we will not take this 12. That one 12 1s are 12. We will not take this. Okay, only we will take this two numbers. Now you have to find out further. We have to divide this number. Okay, suppose if we take the like this, now this is the tree diagram. You can also write down it like this, and for this one here directly you write 6 2s are 12. Okay, so that space will be less space will be occupied. Okay, now what is the further factor of this 4? How can we write this 4 in the factorization? 2 2s are 4. Okay, it means for this 2 we will write here 2 2s are 4, and this 3 will be as it is. Now we cannot further factorize this 3 or further factorize this 2, and that's why here we will stop up to this one. Okay, here हमने अभी तक ये फाइनली हम पहुंच गए फैक्टर पे. अभी इसके बाद हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते. इसके आगे भी हम इसको फैक्टराइज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 3 के कोई और फैक्टर नहीं है, बस 3 1s are 3 है. 2 के भी सिर्फ 2 1s are 2 और सेम ये 2 भी. तो चलो यहाँ पे सेकेंड लेते हैं. यहाँ पे क्या आएगा? 2 3s are 6 into 2 as it is. अभी ये भी सेम यहाँ इसके जैसा आ गया. अगर हमने इसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया तो क्या आएगा? ये 2 2 स्टार्टिंग में लिए हमने, 3 इसके बाद में, ठीक है? मतलब ये और ये नंबर 12 के जो फैक्टर्स है हमने, अगर 6 2s are 12 लो तो भी इतने ही फैक्टर आएंगे उसके, और 4 3s are 12 लो तो भी इसके फैक्टर कितने आएंगे? सिर्फ इतने ही आएंगे. दैट इज 2 into 3. इट मीन्स अभी यहाँ पे देखो आप, हमने अगर 12 के फैक्टर्स, if we find the factors of 12, we are getting only this 2 into 3. It means how many numbers we are getting? This 2 and this 2 get repeated. It means only one time we will write it, and this 3 is only, that is 2 3. And now you tell me what is this 2 3? 2 is the prime number, right? And 3 is also the prime number. 2 is the smallest even prime number, and 3 is also prime number. So according to that, what we will say now here, this 2 and 3 are the prime numbers, and now we have factorized this. That's why this type of factorization where we get the prime numbers in the factor of that given number. So that type of factorization is known as a prime factorization. Okay.
It means these 2 and 3 are the prime factors of what? 12. ओके, हमने 12 नंबर लिया था, नंबर 12 लिया था, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? 2 and 3 are the prime factors of 12 and such arrangement, इस तरह की अरेंजमेंट को या फिर फैक्टर्स को आप क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, ठीक है। such a factorization of a numbers are called prime factorization. हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों ही, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों कहा? क्योंकि हमें प्राइम नंबर मिले फैक्टर में, उसके जब हमने फैक्टर फाइंड आउट किए दिए वाले नंबर के, जैसे कि हमने यहाँ पे 12 नंबर लिया था, आप दूसरा भी लेके देखो, ठीक है, 36 लो या फिर कोई भी अनदर नंबर लेके देखो, फिर उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो। आपको अगर उसके फैक्टर्स में लास्ट में प्राइम नंबर्स मिलेंगे, जैसे कि 2, 3 ऐसे 5, ओके 7, ऐसे जो फैक्टर्स प्राइम है ऐसे लोगे, तो आप उसको लास्ट में क्या कहोगे? इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन, इस मेथड को या फिर इस अरेंजमेंट को या फिर इस तरह की फैक्टराइजेशन को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कहोगे। समझ में आया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है हमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दैट इज दैट, नाउ दिस इज योर होमवर्क, सेम थिंग whatever I have did with 12, you have to try with this 36. Okay, find out the factors of 36 and you tell me how many prime factors of 36 are there. Okay, that is your homework. Now we will see the next topic. In that same topic is that we have to find out the factor tree. Okay, factor tree. Next topic is factor tree. आप सब लोगों को पता है फैक्टर ट्री, ट्री मतलब क्या? पेड़, ठीक है, पेड़ रहता, यहाँ पे सपोज हम पेड़ कंसीडर करें, इस पेड़ को बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना ट्री को ब्रांचेस मतलब क्या है? इस ट्री के फैक्टर्स है, ठीक है। जैसे कि हमने एक पेड़ के इस पेड़ को सपोज कंसीडर करो आप 90, ठीक है, एक नंबर लिया। अभी इसके ब्रांचेस क्या होंगे? इस ब्रांच पर 10 होगा, इस ब्रांच पे 9 होगा, मतलब 9, 10 9 जा 90। समझ में आ रहा है आपको? मतलब क्या? अबे हम स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू टेक द 90, ओके, एंड देन फाइंड आउट द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री मतलब ऐसे इस तरह की ट्री डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, आप साइंस में आपके पढ़े होंगे ट्री डायग्राम, आपको मतलब हमेशा उसमें रहती है, ठीक है। इस तरह से हमको मैथ में भी फैक्टर ट्री सीखनी है, तो 9 के ऐसे फैक्टर्स निकालो, पर उसको ट्री के फॉर्म में लिखो, ऐसे ब्रांचेस के टाइप पे, एक ब्रांच यहाँ पे एक ब्रांच वहां पे, ठीक है। तो अभी 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ ए पे मैंने कहा 9 10 जा 90, ओके, 9 10 जा 90। तो अभी फर्दर 9 के और फैक्टर्स निकालो, मतलब क्या? 9 के और ब्रांचेस, अभी 9 की मेन ब्रांच ये है, तो इसकी फर्दर ब्रांच ऐसी होगी, ठीक है। 10 की फर्दर ब्रांच ऐसी होगी, 5 2 जा 10, ओके। 9 की कैसी होगी फिर? 3 3 जा 9, लाइक दिस, ओके। इट मीन्स हियर नाउ यू हैव टू राइट दिस 3 एज अ 3 3 जा 9, ओके, समझ में आए? और 10 को कैसे लिखेंगे आप? 2 5 जा 10, ओके। अभी इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? 3 को हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते, उसके और मतलब फैक्टर निकाल सकते हैं क्या? नहीं, तो इस 3 की भी नहीं निकाल सकते, 2 की उसकी भी नहीं निकाल सकते, 5 की उसकी भी नहीं। अभी ये जो लास्ट में हमें जो भी नंबर्स मिले वो सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे लास्ट में, तब आपको वहां पे आपकी डिवाइडेशन या फिर फैक्टराइजेशन स्टॉप करनी है, मतलब आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट दिस 3, दिस 3, दिस 2 and this 5 are the factors of this 90, okay. So systematically आप लिखो factors of 90. So here factors of 90 are systematically आप मतलब स्टार्टिंग से स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक जाओ। 2, 3 रिपीटेड है तो हम एक ही 3 लेंगे, ठीक है, कॉमा लास्ट वन इज 5, ओके। Like this we have find out the factors of 90. Got it? Now इस तरह से आपको फैक्टर ट्री और ये जो फैक्टर्स है ऐसे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं, ये दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे, I hope so. And if you understand this one, now you can easily solve the next exercise, okay. I think this is exercise 3.5, but on the basis of that exercise I have to teach you one more example regarding to finding these factors in another method like this one, no? If generally divide these things in this way, हम डिवाइडेशन जनरली ऐसा करते हैं, पर अभी हमको डिवाइडेशन इस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे
अगर 4 है 2 से उसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे 4 लिखना होगा, यहाँ पे 2, और इस तरह से इसको अरेंजमेंट करनी है। तो ये आप हम कल के नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, ठीक है। आई होप दिस यू अंडरस्टैंड, एंड जस्ट नाउ टुडे यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दिस 36, 24, 95, you can take another example by your own also, that is 85 and 42, okay। ये 5 जो एग्जाम्पल है जो आपके होमवर्क के लिए है, इसको आपको फैक्टर ट्री के हिसाब से भी सॉल्व करना है, और सेम एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए भी लेना है, ठीक है। सो सॉल्व दिस एंड सेंड मी योर होमवर्क आफ्टर कंप्लीशन, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।